After completion of concentration terms in chapter solution, today we start next important topic, solubility. What is the solubility? The maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent. Maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent is known as solubility. So what is the solubility? The maximum amount of solute that can be dissolved in, if I write 100 gram of solvent for a specified amount of solvent, in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent to form a saturated solution. Saturated solution is known as saturated solution at a given temperature. Saturated solution at a given temperature is known as solubility. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कह सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सॉल्यूट को एक स्पेसिफाइड अमाउंट सॉल्वेंट में, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना ज़्यादा सॉल्यूट की जरूरत पड़े वह क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या बात रही है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ एक टर्म आया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, सैचुरेटेड solution. What is the saturated solution? The saturated solution की बात करेंगे, the solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. इसको saturated solution की बात करेंगे, the solution ऐसा solution जिसमें हम और solutes को dissolve नहीं कर सकते, no more solute can be dissolved at a given temperature and pressure। मतलब यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके भी नहीं, अगर आपको डिजॉल्व करना है, अगर मान को कह दें एक गिलास पानी में 1 glass water, in 1 glass water, अगर एक गिलास वाटर में अगर अधिक से अधिक हम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर 10 ग्राम चीनी डिजॉल्व कर सकते हैं, आफ्टर दिस इफ वी ऐड द शुगर इन द वाटर दे स्टार्ट द सेटलिंग एट द बॉटम। हमने स्टार्टिंग में तो सॉल्यूशंस की बात किया था, इन द होमोजेनियस मिक्सचर एट द सेम फेज, देयर इज नो डिफरेंस फेज विद द सॉल्यूशन। तो इफ वी ऐड द शुगर इन द वाटर, then the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent if after completion of saturation, that means if the saturation is completed and the solution is left and there is no formation of precipitate, yeah, there is no settling of solute, that is saturated solution। अगर हम बात करें अब उससे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम सैचुरेटेड सॉल्यूट्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन इन व्हिच
व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved. So such solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure, पे अगर हम अब उससे ज्यादा सॉल्यूट्स को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. The solution in which no more solutes can be dissolved is known as saturated solution. अब एक और टर्म आएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन unsaturated solution. What is the unsaturated solution? The solution in which unsaturated या saturated है या unsaturated असंतुलित, मतलब इसमें अभी और हम सॉल्यूट्स को डिजॉल्व कर सकते हैं. The solution in which more solute can be dissolved, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved. The solution in which more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. At the same temperature and pressure. Same temperature and pressure. Same temperature and pressure. The solution in which same temperature and pressure, मतलब टेम्परेचर प्रेशर क्या है हमारे सेम है. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट्स को डिजॉल्व कर सकते हैं उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पे, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं. इफ वी चेंज द टेम्परेचर और प्रेशर देन नो, तो वहाँ कंडीशंस की बात हम नहीं करेंगे, तो सुपर सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं. मतलब ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है और हम इसका टेम्परेचर और बढ़ा करके और सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, दैट इज द सुपर सैचुरेशन. जैसे हम चाशनी बनाते हैं, द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हमको बात करना है सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी में हम लोग देखिए थे टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सर्स की बात किए थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पे बेसिकली हम लोग थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़े थे. गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एज वेल एज सॉलिड सॉल्यूशन. दैट मींस ऑन सॉल्यूशंस की बात किए, ऐसा सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशंस की बात की जिसमें हम कहे थे कि गैस एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट. लिक्विड सॉल्यूशंस की बात की थी, लिक्विड एक्ट एज सॉल्वेंट एंड गैस लिक्विड एंड गैस लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड गैस इज ए सॉल्यूट. तो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन. तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम बात करेंगे पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, और इसी में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. तो फर्स्ट वी टॉक द फैक्टर्स affecting solubility.
फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। और बेसिकली ये सॉल्युबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं कौन से लिक्विड सॉल्यूशन में। तो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द here liquid act as a solvent and gas act as a solute। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस इनसाइड द वाटर, तो वाटर के अंदर हम गैस को डिजोल्व कर रहे हैं। पहले बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो पहला हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Nature of solute and solvent. So first we talk about the factors. The factors nature of solute and solvent. Solute and solvent. If we talk about the solute, solvent, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा है तो इसलिए इस पर आउट्स लगा क्वेश्चन आएंगे। नेचर्स की बात करेंगे तो नेचर ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स। In this topic जो very important solvents की बात की है, suppose solvent is A and A, solute is B। तो अगर हम लोग सॉल्वेंट अगर मानिए वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर के बीच में H2O के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इस अगर हमारा A और B सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को एक साथ अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो हियर देयर इज ए इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट। तो फॉर द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट द सम फोर्सेस विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन द सॉल्यूट एज वेल एज न्यू फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना, सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये पूरे हम सॉल्यूशंस में देखेंगे। तो पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात की है तो इफ सपोज हम सॉल्वेंट की बात करें, इफ सॉल्वेंट ए अगर हमारा सॉल्वेंट है, अगर हम इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स किए, solute is mixed inside the solvent। यहाँ पे A and A, यहाँ पे B and B। तो जो B और B और A की बात करेंगे जैसे तीन कंडीशंस आते हैं। तो पहला ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ सॉल्यूट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ सॉल्वेंट एंड फॉर्मेशंस ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दैट मींस A and B। A और B की बात करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशंस की बात करेंगे। तो एक अब देखिए होगा क्या है, तीन केसेस की हम बात करेंगे। तो तीन केसेस की बात करेंगे। पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स में हम सॉल्यूट्स की बात करें, इफ फर्स्ट कंडीशन इफ AB bond is more stronger than AA and B। That means यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच जो सॉल्वेंट्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इन दोनों बॉन्ड से अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। दैट मींस यहाँ पे हम बात करेंगे डेल्टा H इज लेस देन 0। यहाँ पे इन दिस केस डेल्टा H इज लेस देन 0, मतलब डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव। दैट मींस इट इज फिजिबल। क्यों से कि यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा प्रोसेस है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड वर्क फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो अगर इसका स्टॉक में बहुत ज्यादा एनर्जी निकला होगा दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज इट इज द फिजिबल प्रोसेस बिकॉज़ इफ द डेल्टा H इज लेस देन -0, दैट इज डेल्टा H इज नेगेटिव। दूसरा केस बात करें, इफ
if AA and BB bond, AA and BB bond is greater than AB interaction. AB interaction मतलब इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मोर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 का तो हो सकता है एंडोथर्मिक वहाँ पे यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, सॉल्यूशन कैसे होती है, एक थर्मोडायनेमिक्स टर्म डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो फॉर द फिजिबल रिएक्शन में फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर डेल्टा G नेगेटिव आता है तो इस कंडीशन से हमारा रिएक्शन सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें डेल्टा या फिजिबल रिएक्शन फिजिबल नहीं, उस कंडीशन में हम डेल्टा G नेगेटिव की बात करते हैं। अगर डेल्टा G इज नेगेटिव, इफ डेल्टा G इज नेगेटिव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की लिए बात करेंगे तो यहाँ डेल्टा H नेगेटिव, ये डेल्टा H नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव का आगे डेल्टा G नेगेटिव और इसके वजह से फिजिबल होगा। यहाँ बात करें डेल्टा H इज पॉजिटिव और two factors is responsible for solubility of this solvent. First the energy and second is the entropy. If the randomness is increases, entropy is increases, then solubility of the gases is increased. Here delta S is positive, delta H is also positive। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब यहाँ जा करके फिजिबल ये होल प्रोडक्ट T delta S is responsible for increase the entropy। अगर एंट्रोपी बढ़ती है, अगर बहुत ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा फैक्टर नेगेटिव आ जाएगा, जिसके वजह डेल्टा G के यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात हम कर सकते हैं। दैट मींस द रिएक्शन इज फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को मिनिमम करेंगे, टेम्परेचर रिएक्शन, देन जहाँ टेम्परेचर पे पूरा का पूरा फैक्टर इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? तब कम हो जाएगा, डेल्टा इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज नॉन फिजिबल। यहाँ पे हम दो चीज पढ़ेंगे, राउल्ट की बात करेंगे, यहीं से नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स पे फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो इफ डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इफ डेल्टा G इज पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी की बात करते हुए हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, यह डिसाइड करेगा हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करेंगे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक process, not endothermic. For endothermic, the solubility increases, the solubility increases. For endothermic, the solubility increases with rise in temperature. With rise in temperature. तो देखिए एंडोथर्मिक की बात हम कर रहे हैं, दैट मींस डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और एंडोथर्मिक की बात करें, डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और T डेल्टा S इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। यही पूरा का पूरा एंट्रोपी फैक्टर्स की बात कर रहा है, और
सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व हुआ है, सॉल्यूट्स का अमाउंट बढ़ेगा इन द सॉल्वेंट दैट द सॉल्यूशन विल फॉर्म। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन T डेल्टा S, अगर हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा फिर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। दैट मींस दैट एंडोथर्मिक डेल्टा S इज पॉजिटिव, डेल्टा S क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा S क्या हो गया, डेल्टा S इज पॉजिटिव, तो डेल्टा S पॉजिटिव हो गया। और फॉर फिजिबल रिएक्शन डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव। अगर फिजिबल या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की बात करेंगे डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव। यार इसको नेगेटिव करने के लिए इसको अगर एक पॉजिटिव वाले इस पूरे फैक्टर को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, एंट्रोपी तो बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ हम टेंपरेचर को भी बढ़ा दें। इफ टेंपरेचर इंक्रीजेस देन solubility increases. For exothermic reaction, the solubility for exothermic reaction, the solubility decreases with increasing temperature. Solubility decreases with increasing temperature. हम देखिए टेम्परेचर की बात कर रहे हैं फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और एक्सोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ राइजिंग टेम्परेचर मतलब किसके लिए, एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना। जैसे अगर हम चूने को अगर पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर चूने को पानी में डालते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट, अगर गर्म पानी डालें तो उस गर्म पानी में चूना क्या हुआ, कम डिजॉल्व हुआ, कंपेयर टू कोल्ड वाटर, इक्वल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। और उसके बाद जब गर्म पानी तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, कम हुई। ठीक, अब देखिए solubility of gas is inversely proportional to temperature। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility of gas क्या होगा, कम होगा। एंड solubility of solid is directly proportional to temperature. That means if solubility of gas, जैसे देखिए गर्म वाटर में तो यहाँ क्वेश्चन आपका पूछता है why aquatic organisms are more comfortable in cold water in comparison to hot water। एक नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है why aquatic organism या aquatic organisms या fishes are more comfortable in cold water in comparison to the hot water। तो हॉट वाटर के कंपैरिजन में कोल्ड वाटर में कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होता है, बिकॉज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, तो हॉट वाटर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, कम होगा। दैट मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीजेड एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन जरूरी है, गैस की जरूरत है, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अनकंफर्टेबल फील करते हैं इसमें हॉट वाटर। ये आप क्वेश्चंस एक नंबर पूछा हुआ है, कई राउंड पूछा हुआ है, एक नंबर 2 नंबर में। हम बात करते हैं प्रेशर की। अब प्रेशर पे ही हम बात करेंगे हेनरी लॉ की। हेनरीज लॉ। नेक्स्ट है प्रेशर, और प्रेशर पे हम बात करेंगे हेनरी लॉ की।
नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर, नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर, और इसी पे बात करेंगे हम हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ की बात करेंगे, तो व्हाट इज द हेनरी लॉ? प्रेशर की बात करेंगे तो इनका प्रेशर एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो किसी भी सॉल्वेंट्स में जो गैस की सॉलिडिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो at constant temperature the mass of dissolved gases is increases with rising temperature। तो प्रेशर की बात करेंगे, हम यही से बात करते हैं हेनरी लॉ की। हम बात करते हैं हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? At constant temperature, at constant temperature, at the constant temperature, at the constant temperature, the mass of dissolved gas, the mass of dissolved, the mass of dissolved gas at a constant temperature, the mass of dissolved gas in a given amount of solvent, in a given amount of solvent, in a given amount of solvent is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to the mass, directly proportional to pressure of the gas, directly proportional to pressure of the gas, pressure of the gas with which pressure of the gas with which it is in equilibrium, it is in equilibrium, equilibrium. So at constant temperature the mass of dissolved gas in a given amount of solvent is directly proportional to the pressure of the gas with which it is in equilibrium. That is, m is directly proportional to p. m is directly proportional to p. m क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ बात करेंगे m is equal to kp, where m is the mass of the amount of gas and p is the pressure of the gas. K is proportionality constant। नोट कर लीजिए, ऊपर चलते हैं। Here m is equal to kp, m is equal to kp, here where k is equal to proportionality constant, where k is equal to proportionality constant, k is equal to proportionality constant। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट हेनरीज लॉ एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज किया, कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगा, वहाँ पे कितना प्रेशर, तो वहाँ पे हेनरीज लॉ एक्चुअली किस पे डिपेंडेंट है? मोल फ्रैक्शंस पे। अगर मानिए और एक से ज्यादा मिक्सर्स ऑफ गैसेस की बात करें तो वहाँ एक कंपोनेंट्स कितना डिसॉल्व डेंसिटी या द मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure of that gas। तो
कोई भी गैस किसी भी लिक्विड्स में कितना डिजॉल्व होता है, यहाँ पे तीन में बोल दिया m इज इक्वल टू Kp, तो यहाँ पे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब अगर ग्राफ की बात करें दैट इज m इज इक्वल टू P। देखिए यहाँ ग्राफ कुछ ना कुछ उसमें गैस तो पहले से डिजॉल्व हुआ, अब ग्राफ इस पॉइंट का मतलब ये है कि पहले से कुछ ना कुछ गैस उसमें डिजॉल्व, इसलिए ग्राफ अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करते मतलब इसका मतलब होगा अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा पीछे बढ़ा दें, अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में वहाँ गैस का कुछ भी मास नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, गैस का कुछ ना कुछ डिजॉल्व होता है, इसीलिए ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। दैट इज मतलब इफ प्रेशर इज इंक्रीज, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मास ऑफ द गैस इंक्रीज द प्रेशर। हियर अगेन जब यहाँ पे अगर बात करें तो फिर हेनरीज लॉ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की गई थी, तो जो हेनरी लॉ को फिर डिफाइन किया गया, दैट मींस मोल फ्रैक्शन। तो वहाँ पे उन्होंने कहा the dissolved gas the mole fraction is directly proportional to partial pressure of that gas। यहाँ पर फिर हेनरीज लॉ को सॉल्युबिलिटी गैस की बात करें तो फिर उसको डिफाइन किया गया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि मास पूरे प्रेशर की बात है, जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना उसका मास डिजॉल्व होगा। बट हेनरीज लॉ की बात हम करेंगे तो हेनरीज लॉ ने कहा था कंसंट्रेशन टर्म यूज किया था, और कौन सा कंसंट्रेशन था, मोल फ्रैक्शन की बात किया था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस हेनरीज लॉ की बात अगर ध्यान में कैसे कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in a solution is proportional to the partial pressure of that gas, partial pressure of that gas। मतलब here chi is the mole fraction is directly proportional to partial pressure of that gas। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ की एक्चुअल में मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात है, अगर एक से ज्यादा गैसेस अगर लिक्विड में जो तो वहाँ मास के रिस्पेक्ट, लेकिन एक्चुअल हेनरीज लॉ की बात यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अगर वाटर के अंदर का लिक्विड के अंदर एक से ज्यादा गैसेस है तो वहाँ हम बात करेंगे तो हियर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात किया गया है, chi is the mole fraction of the gas, mole fraction of the gas in the solution, mole fraction of the gas in the solution। And what is the P? P is the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, partial pressure of the gas। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो chi is equal to K dash P, chi is equal to K dash P। here chi is equal to K dash P, अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे P is equal to क्या हो जाएगा, P is equal to 1 upon K dash into chi, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और यहाँ पे 1 by K dash is equal to known as KH,
और इट इज द हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू 3H into mole fraction of that gas. That is the partial pressure of gas is directly proportional to the mole pressure of the gas. यहाँ पे KH is known as Henry's constant. KH is known as Henry constant.